Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Surya School. Students, today we will start a new chapter, that is why do we fall ill. Okay, as you know, health and diseases in human communities are very complex issue with many interconnected causes. Okay, so let us first try to understand the basic functioning of human body. As we know that cell is the basic unit of life. That means all living organisms are made up of cells, and these cells are made up of variety of inorganic and organic substances. Inorganic and organic substances. Inorganic means water, H2O, gases, salt, etc. And organic substances means protein, fat, carbohydrate, lipids. Okay, so cell is responsible to make the tissues, and tissues makes organs, and organs combine and make the organ system, and finally an organism. In the tissue or organ of human body too, many specialized activities are going on. For example, like what is the function of heart? Heart is like continuously beating and pumping the blood. Lungs are breathing to provide oxygen to the cell and are also responsible for the removal of carbon dioxide of the body. Kidneys are filtering blood to form urine. Okay, and then brain is thinking. Brain is responsible for thinking, for making the decisions. All these activities involving different body organs, like these activities are going on in different organs, but they all are interconnected to each other. Okay, for example, like if kidney, okay, it's not properly form the urine, it's not forming the urine, so the poisonous substance like urea is accumulated in the body, and under these kind of situations brain will not be able to think properly. Okay, so for all such interconnected activities, body needs energy and also requires regular supply of raw material from the outside of the body. So all the organs are interrelated. If anything that prevent proper functioning of the cells, proper functioning of the tissues, organ, will lead to the lack of proper activities of the body. That means when all the organs are not doing work properly, so it's create a kind of uneasiness, it's create a disease kind of. Okay, so today we discuss about health and its failure, types of diseases, means of spread of diseases, we all discussed in today's lecture. In general discussion, in general means the meaning of health is free from illness, disease, injury, pain, lack of physical fitness. That means कि हम हेल्थ को कहते हैं कि लाइक अगर वो कोई डिजीज़ फ्री है, बीमार नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, चोट नहीं है, दर्द नहीं है, तो वी आर सेइंग दैट दिस पर्सन इज़ हेल्दी पर्सन. बट इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज, health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. If a person is physically fit, mentally fit and socially fit, so we can say this person is healthy. Okay, in health word we include all three words: physical, mental or social. So important characteristics of a person having good health. If a person is with a good health, so these characters he have, like free from sickness and disease,
दैट मीन्स ही इज़ अ फिजिकली फिट। अगर उसको बीमार नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, दैट मीन्स वो फिजिकली फिट है। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंग्जाइटी, यानी फ्री फ्रॉम टेंशंस एंड एंग्जाइटी, दैट मीन्स ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग, राइट, इज अ मेंटली फिट। फ्री फ्रॉम सोशल ऑफ फिजियोलॉजिकल टेंशंस, दैट मीन्स वो सोशली उसके रिलेशंस अच्छे हैं with their family members, with their professional life. Self confidence, feeling joy in life, in living, वो अपनी लाइफ को enjoy कर रहा है, confident है, और ability to work efficiently and it's best, वो उस किसी भी काम करने को वो 101% अपना दे रहा है, efficient है, और वो अपना 100% दे पा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हेल्दी है। ओके, वो फुल एनर्जी के साथ काम कर रहा है, उसके फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस अच्छे हैं, देन वो कोई टेंशन में नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसमें। तो ये सारे ही जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक गुड हेल्थ के हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। सी, हेल्दी means it is a state of physical, mental and social well-being. Okay, if a person is healthy, that means he is a physically, mentally or social well-being. And disease free means it is a state of absence of from diseases, that means in a body only disease free, वो पर्सन डिजीज़ फ्री है, उसे कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली फिट है। एंड हेल्दी में फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही एरियाज़ में वो फिट है। यहाँ पे डिजीज़ फ्री में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस पर्सन की बात कर रहे हैं, उसके फिजिक की बात कर रहे हैं, उसके फिज़िकल की बात कर रहे हैं कि उसके बॉडी के अंदर और बाहर क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम उसकी फ़िज़िकल, सोशल इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल यानी कि हम उसकी फ़िज़िकल के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसकी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल के भी बारे में बात कर रहे हैं, हर तरीके से हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, द इंडिविजुअल हैज़ अ गुड हेल्थ, यानी जो ये पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, उसकी डेफिनेटली 101% वो गुड हेल्थ उसकी होगी। एंड डिजीज़ फ्री में इंडिविजुअल मे हैव अ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, इसमें कुछ भी हो सकता है, उसकी गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है, क्योंकि डिजीज़ फ्री में हम सिर्फ उसके फिज़िकल फिटनेस के बारे में बात करें, बट इन हेल्दी में हम उसके फिज़िकल, मेंटल और सोशल के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, अ हेल्दी पर्सन मे बी डिजीज़ फ्री बट अ डिजीज़ फ्री मे और मे नॉट बी हेल्दी। मीन्स एक हेल्दी पर्सन है, वो डिजीज़ फ्री हो सकता है, बट अ डिजीज़ फ्री मे और मे नॉट बी हेल्दी। ओके, क्योंकि डिजीज़ फ्री में हम सिर्फ और सिर्फ उसके फिज़िकल फिटनेस के बारे में बात करें, मे बी वो मेंटली अब नॉर्मल हो, मे बी उसके सोशली रिलेशनशिप अच्छे ना हो, या फिर हो भी तीनों के, तो वो मे और मे नॉट के बीच में आ जाती है बात इसमें। नाउ diseases and its causes. When a person is affected by a disease, either the normal functioning or appearance of one or more systems of the body changes for the worse. Okay, that means अब एक पर्सन है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग यानी जो उसके ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्लड जो काम कर रहा था, ब्लड का काम था न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल सभी को सर्कुलेट करना, उनके टारगेट एरियाज़ तक पहुंचाना, ठीक है, हार्ट का अपना काम था। अगर ये काम नॉर्मल फंक्शनिंग है जो नहीं हो रही है, ओके, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, कुछ साइन और सिम्टम्स वो शो करते हैं, राइट। जैसे कि अज्यूमिंग कि किसी को फीवर है, तो ये क्या है, एक सिम्टम्स है, या फिर किसी को हेडेक है, सो दीज आर द सिम्टम्स। लाइक अ पर्सन है, उसको हेडेक है, राइट,
लाइक अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, लाइक वी हैव अ हेडेक, कफ, लूज मोशंस, राइट, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ सच डिजीजेस। हेडेक में अगर अंडर स्ट्रेस सच एस, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हेडेक के। लाइक अगर हम बात करें तो हेडेक है वो ओवर वर्कलोड के कारण भी हो सकता है, मे बी एग्जामिनेशन स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, मे बी आई साइड इज़ वीक और ब्लड प्रेशर, राइट, so many reasons. So it may occur due to number of diseases like malaria, typhoid, jaundice. Symptoms do not give any exact cause of disease. अब हेडेक एक सिम्टम था, बट इस ये कोई प्रॉपर नहीं बता रहा कि कौन सी डिजीज़ के कारण से होता है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न से हेडेक हो सकते हैं. सो देर इज़ अ साइन दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीजेज. सिम्टम्स सिर्फ उस डिजीज़ को सिम्टम्स होते हैं कि लाइक बॉडी में रेडनेस हो जानी, ओके, हेडेक, कोल्ड होना, कफ होना, ये सिम्टम्स है, बट ये बताते नहीं कि डिजीज़ कौन सी है. डिजीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं उन्हें साइन बोलते हैं. दीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. अगर आपको कहा जाए जस्ट गिव द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स ऑफ साइन ऑफ डिजीजेज, राइट, तो सिम्टम्स में हम बात करते हैं, सिम्टम्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़. वो सिर्फ आपको ये बताएंगे सिम्टम्स कि हाँ भाई कोई ना कोई डिजीज़ तो है, राइट. साइन आपको बताएंगे, साइन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. वो आपको पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइन. On the basis of symptoms, physician look for the sign of the particular disease and conduct test for the confirmed disease. फिर उसके बारे में बताते हैं कि भाई कौन सी बीमारी है, उसके लिए प्रॉपर फिर जो सिस्टमेटिक जो भी एक मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो किए जाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ डिजीजेस. देयर इज़ अ 4 टाइप ऑफ डिजीज. एक्यूट, chronic, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल, infectious or communicable disease. Very first, acute disease. Acute disease which last only for a short period of time. It is the main characteristics of this. That means जो acute diseases होती है वो सिर्फ short period of time के लिए 1 to 3 week around, एंड डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ. हेल्थ के ऊपर लंबे इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कोल्ड, कफ, लाइक, राइट. दिस डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड पेशेंट रिकवर फुली आफ्टर द ट्रीटमेंट. जब ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो. देयर अकर्स नो लॉस ऑफ वेट. इसमें वेट लॉस नहीं होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं. कॉमन कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. दिस इज़ द एक्यूट डिजीजेस. नाउ क्रोनिक डिजीजेस, दीज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबे टाइम तक की बीमारी होती है ये, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए, एंड इसके बहुत ही सीवियर और ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे. इसमें पेशेंट है वो डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, बिल्कुल कम्प्लीटली वो रिकवर नहीं होता है. दे अकर्स लॉस ऑफ वेट. वेट का भी लॉस होता है इसमें, ओके. लाइक इसमें आप एक एग्जांपल देख ही रहे होंगे, एलिफेंटियासिस. इसमें क्या होता है, जो बॉडी ऑर्गन बड़ा हो जाता है. लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, ठीक है. तो लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी को हम क्रोनिक डिजीजेस कहते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़. According to their name, communicable means disease which spread from one infected person to a healthy person. एक infected person से healthy person तक बीमारी का पहुँचने से communicable diseases, right? Example is here common cold, chicken pox, tuberculosis, malaria, AIDS. ये सभी communicable diseases हैं. And दीज अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, जैसे एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट, ओके. एंड दीज डिजीज़ आर कॉज बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस. और ये सिर्फ और सिर्फ पैथोजेंस के अटैक से भी होती हैं.
नॉट सिर्फ और सिर्फ इस कोज बाय अटैक ऑफ पैथोजेंस भी हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआस एंड worms. Now, is a non-infectious or non-communicable. According to their name, non-communicable means ये disease which are not spread from an infected person to a healthy person. जो infected person से healthy person में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. बेरी रिकेट्स, स्कर्वी, ये जो बीमारियां होती हैं नॉन इन्फेक्शनियस डिजीज़ होती है, दिस आर जनरली अकर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. जो बॉडी के अंदर के जो फैक्टर्स हैं उन्हीं के कारण ये होती हैं, राइट. एंड दीज आर कोज्ड बाय द फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजेंस. पैथोजेंस के अलावा और रीजन्स के कारण नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं वो होती हैं. दिस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, राइट. And infection is not transmitted through the direct contact. कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन नहीं होता है अनहेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ओके बेटा, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज इन इन्फेक्शियस एजेंट. वी विल डिस्कस अबाउट इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.